Hello dear students, myself Manoj Sunania. I welcome you in my online YouTube English classes. In today's class you are going to learn something about present perfect continuous tense. In my previous classes I had already taught you about simple present, present continuous and present perfect. So let's learn what is present perfect continuous tense. And please don't forget to like and subscribe my channel so that you may get my upcoming videos first. So dear students, without wasting time, let's start studying usage of present perfect continuous tense. So here for any tense you should know three things. First is identity, second is helping verb and third is main verb. So let us talk identity in Hindi. At the end of a Hindi sentence we find से रहा है, से रही है, से रहे हैं और रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं plus time. This is the identification in Hindi. And how can we identify present perfect continuous tense in English? So let's talk about that. Identity in English. Here we'll have to see helping verb and main verb. So helping verb, we have got two helping verbs here, has been and have been, and main verb fourth form which is called present participle. And one more thing we will find here, actually in this tense we find the timing will be given. So before the timing we'll have to use since for. Let's go ahead. Helping verb, सहायक क्रिया की बात करें. So in this tense we have got two helping verbs. इस tense में हमें दो सहायक क्रियाएं मिलती है, has been और have been. Has been का यूज़ हमें he, she, प्रिया, सचिन, singular subject means when the subject indicates the name of only one person, one place or one thing, the noun will be said to be in singular number and we'll have to use helping verb has been. And second helping verb is have been. We use have been with I, we, you, they, children, leaders, teachers, singers, dancers, writers, etc. Means when the subject indicates more than one person, more than one place, more than one thing, in that situation we'll have to use have been. तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन और हैव बीन. हैज़ बीन का यूज़ हमें सिंगुलर के साथ एक वचन के साथ करना है और हैव बीन का यूज़ हमें प्लूरल बहुवचन के साथ करना है. चलिए लेट अस टॉक अबाउट मेन वर्ब, हेड वर्ब और एक्शन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जिससे प्रधान क्रिया कहते हैं. तो यहाँ पर जो मेन वर्ब होगा उसका फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसका यूज़ करना है. जैसे गोइंग, कमिंग, सिटिंग, टॉकिंग, walking, writing, fighting, etc. And one more thing is there in this tense we will have to use since or for before the time which will be given. जो टाइम दिया रहेगा वहाँ पर टाइम को इंडिकेट करने के लिए हमें since for का यूज़ करना पड़ेगा. Now let's see the use of preposition for. We use preposition for to show period of time or uncertain time or duration time. जब समय की अवधि दी हुई होगी या निश्चित समय दिया रहेगा तब हमको वहाँ पे for यूज़ करना है. और for का यूज़ हम ये कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे हमको करना है. नंबर्स ऑफ डेज, जब दिनों की संख्या दी हुई है तो फॉर लगाना है. जैसे फॉर 1 डे, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 5 डेज एट्सेट्रा. नंबर ऑफ मंथ, जब महीनों की संख्या दी है तो फॉर लगाना है. फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स एट्सेट्रा. नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स, जब घंटों और मिनटों की संख्या दी होगी तब हमको फॉर लगाना पड़ेगा. जैसे फॉर एन आवर 1 घंटे से, फॉर 5 आवर्स 5 घंटों से, फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे से. ओके, नेक्स्ट इज देयर नंबर ऑफ ईयर्स, जब वर्षों की संख्या दी हुई है, फॉर अ ईयर, फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इस प्रकार से जब भी कोई टाइम दिया रहेगा तो हमको फॉर लगाना है. ठीक है, इज इट क्लियर? वी विल यूज़ फॉर टू शो पीरियड ऑफ टाइम और अनसर्टेन टाइम. चलिए लेट अस टॉक अबाउट यूज़ ऑफ सिंस. वी यूज सिंस बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम और सर्टेन टाइम. जब निश्चित समय दिया रहेगा तब हमको वहाँ पर सिंस का यूज़ करना है. चलिए देखते हैं कंडीशंस. यस, कंडीशन नंबर 1, नेम ऑफ डेज, जब दिनों के नाम दिए तो सिंस लगाना है. सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, बिकॉज दीज आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन टाइम. ठीक है ना, निश्चित समय को बता रहे हैं. अब नेम ऑफ मंथ, जब महीनों के नाम दिए तो सिंस लगाना है. सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस दिसंबर. ठीक है ना. देन सर्टेन टाइम और टाइम ऑफ द क्लॉक, जब घड़ी का समय दिया है तब भी हमको सिंस लगाना है. सिंस 1 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock, तो घड़ी का समय हो तो भी हमको सिंस लगाना है. पार्ट्स ऑफ द डे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ द डे, उस कंडीशन में हमको सिंस लगाना है. जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मिडनाइट, सिंस लास्ट नाइट, यहाँ पर सिंस लगाना है. देन नेम ऑफ द ईयर, जब सेशन का नाम दिया है तो हमको सिंस लगाना है. सिंस 2005, सिंस 1947, सिंस 2008 एट्सेट्रा. कोई भी सेशन दिया है, कोई भी ईयर दिया है तो वहाँ पर हमको सिंस लगाना है बिकॉज दीज आर इंडिकेटिंग सर्टेन टाइम. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेम ऑफ सेंचुरी, व्हेन द नेम ऑफ सेंचुरी इज गिवन इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज सिंस. सिंस 19th century, सिंस 6th century, सब शताब्दी का नाम दिया है तो भी हमें सिंस लगाना है. एंड पार्ट्स ऑफ लाइफ, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, पार्ट्स ऑफ लाइफ, जब जीवन के अंग जैसे बचपना, किसी की शादी, किसी की डेथ,
ये सभी पार्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें सिंस लगाना है। जैसे सिंस चाइल्डहुड, बचपने से, सिंस यूथ, युवावस्था से, सिंस यंग एज, सिंस एडल्टहुड एट्सेट्रा। लेट्स गो अहेड। Now let us talk about sentence structures. So first of all, simple sentence structure is given here. First of all, you have to put up subject, then has have plus been plus verb fourth form, which is called present participle ing form, then object, then since for, then time. तो ये स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अ सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड, वो वाक्य जिसमें कोई बात कही जाती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस इन विच समथिंग इज डिनाइड, मतलब वो सेंटेंस जिसमें किसी बात से मना किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाना है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म, वो पुट अप करना है। फिर हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, देन सिंस फॉर और देन टाइम। So this is the structure of negative sentence. Now let's talk about interrogative sentence. I have already told you that there are two kinds of interrogative sentences. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, those interrogative sentences which can be answered in yes or no, मतलब वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर हम yes और no में दे सकते हैं, वो पहले प्रकार के interrogative sentence होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम, then question mark. This is going to be there. Next one, interrogative second. So for that means those interrogative sentences which cannot be answered in yes or no are called second type of interrogative sentences. वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर हम yes और no में नहीं दे सकते, वो दूसरे प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म विच इज़ कॉल्ड आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। Then let us talk about the sentences which are given here. Let's practice. It's a practice time. हम कई महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसके लिए हम के लिए क्या लगाएंगे आप, सब्जेक्ट वी। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हैव बीन, वी हैव बीन। अब सीख रहे हैं मतलब लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग। हम लोग सीख रहे हैं क्या, इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। कई महीनों से फॉर मेनी मंथ्स, सो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी मंथ्स। हम कई महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहे, नेगेटिव बनाना है, वी हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी मंथ्स। क्या हम कई महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी मंथ्स। रिप्लाई होगा यस वी हैव, नो वी हैवंट। यस वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी मंथ्स, नो वी हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी मंथ्स, ओनली लास्ट मंथ वी ज्वाइंड द क्लास एंड वी हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट वन, वह 2 बजे से पत्र लिख रही है, वह के लिए शी लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। लिखना वर्ब राइट, राइटिंग, शी हैज़ बीन राइटिंग। क्या, अ लेटर, शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर 2 बजे से सिंस 2 o'clock। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है, शी हैज़ंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। क्या वो 2 बजे से पत्र लिख रही है, हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। रिप्लाई यस शी हैज़, यस शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। नो शी हैज़ंट, नो शी हैज़ंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब वो 2 बजे से पत्र क्यों लिख रही है, वाई हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट वन, वे सुबह से तैयारी कर रहे हैं, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव क्या हो जाएगा, वे सुबह से तैयारी नहीं कर रहे हैं, दे हैवंट बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव, क्या वे सुबह से तैयारी कर रहे हैं, हैव दे बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। रिप्लाई यस दे हैव, यस दे हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। नो दे हैवंट, नो दे हैवंट बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं 4 घंटों से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, आई हैव बीन, पढ़ना मतलब रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। क्या, यह पुस्तक, दिस बुक, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है तो फॉर लगाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 hours। मैं 4 घंटे से यह पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैवंट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 hours। क्या मैं 4 घंटे से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 hours। रिप्लाई यस यू हैव, यस यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक, नो यू हैवंट बीन रीडिंग दिस बुक। नेक्स्ट वन, वे लोग लंबे समय से इस बगीचे में बैठे हुए हैं, सो दे हैव बीन सिटिंग इन दिस गार्डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेगेटिव, नहीं बैठे हुए, दे हैवंट बीन सिटिंग इन दिस गार्डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या वे लंबे समय से बगीचे में बैठे हुए, हैव दे बीन सिटिंग इन द गार्डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस दे हैव, यस दे हैव बीन सिटिंग इन द गार्डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो दे हैवंट बीन सिटिंग इन द गार्डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, शुक्रवार से वे इस परीक्षा को दे रहे हैं, यह शुक्रवार से वे परीक्षा दे रहे हैं, सो दे हैव बीन अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन सिंस फ्राइडे। शुक्रवार से वे परीक्षा नहीं दे रहे हैं, दे हैवंट बीन अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन सिंस फ्राइडे। क्या वे शुक्रवार से परीक्षा दे रहे हैं, हैव दे बीन अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन सिंस फ्राइडे। रिप्लाई यस दे हैव, नो दे हैवंट, नो दे हैवंट बीन अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन सिंस फ्राइडे। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लंबे समय से तुम्हें याद कर रहे हैं, तो हम के लिए वी आ गया, मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वी हैव बीन, याद करना मिसिंग, वी हैव बीन मिसिंग।
you लंबे समय से, for a long time. We have been missing you for a long time. हम आपको लंबे समय से याद नहीं कर रहे हैं. We haven't been missing you for a long time. क्या हम आपको लंबे समय से याद कर रहे हैं? Have we been missing you for a long time? Reply, yes, you have. Yes, you have been missing me for a long time. No, you haven't. You haven't been missing me for a long time. So dear students, thanks for attending my class and keep on learning English with me. Please like and subscribe my channel so that you may get my upcoming videos first. Have a good time. Bye. See you in the next class.